So today we are going to solve the problem word string. Let's see the problem statement first. Andhra thinks that the readability of the word is not proper if the word is a mixture of uppercase and lowercase letters. That's why she decided to invent an extension for his favorite browser that would change the letter register in every word so that it either only consisted of lowercase letters or vice versa, only of uppercase ones. If a word contains an equal number of uppercase and lowercase letters, then you should replace all the letters with lowercase ones. So the problem statement is basically that we are given a string and we need to convert it to either containing all small letters or all capital letters. So let's see the input format. The input format is that the first line contains the value of t, that is the number of test cases. The second line contains a string s, which contains some uppercase letters and some lowercase letters. And then we will see the output format, in which we need to print the corrected word s. If the word has strictly more uppercase letters, then we need to make the word written in uppercase register, otherwise in lowercase. तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बेसिकली यही है कि अगर जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स ज़्यादा है लोअर केस लेटर्स से, तो हम स्ट्रिंग को पूरा कैपिटल कर देंगे, और अगर अपर केस लेटर्स लोअर केस लेटर से बराबर है या कम है तो हम पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देंगे. तो अब हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि सो इन दिस एग्जांपल वी हैव कंसिडर्ड दिस स्ट्रिंग हाउस एंड लेट्स सी व्हाट वी विल डू. So first we will create a variable which will store the number of capital letters in the string, and we will also create a variable that will store the number of small letters in the string. So bucket will store the number of capital letters in the string, and small will store the number of small letters in the string. So how will we calculate the number of capital letters and small letters? So what we will do is we will iterate through the string and check each and every element. If it is capital, then we will increase capital by 1. If it is small, then we will increase small by 1. So let's check how to do it. So first letter H, it is a capital letter, so we will increase the value of cap by 1. Then we will check the second letter. So the second letter is a small letter, so we will increase the value of small by 1. Then the third letter is again a small letter, so we will again increase the value of small by 1. The fourth letter is a capital letter, so we will increase the value of capital letter by 1. And the final letter E is also capital, so we will increase its value by 1. So now the value of cap is 3 and the value of small is 2. So obviously the value of capital letter, the number of capital letter in the string is more than the small letters, so we will print the whole string in capital letters, and that will be our answer. So we will print capital H, capital O, capital U, capital S and capital E, that is house in capital. This is what we need to do. So इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो तो काफ़ी सिंपल है. इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो कोड लिखना, वो हम अभी देखेंगे कि कैसे लिखते हैं. तो कोड लिखने से पहले हम एक बार कंस्ट्रेंट चेक कर लेते हैं. तो जो कंस्ट्रेंट्स है वो ये है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो 1 से 100 के बीच में, यानी कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 100 से कम है, और जो हमारे लेटर ऑफ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग है वो भी 100 से कम है. तो मतलब ये जो दोनों है, ये तो अगर हम इनको देखें तो ये दोनों इंट के अंदर ही हम स्टोर कर सकते हैं, हमको लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है. तो अब हम कोड लिखते हैं इसका. पहले ये कोड में हमने स्टैंडर्ड चीजें लिखी हुई है. जो ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है include bit/std++.h, ये क्या है? तो ये भी एक हमारी नॉर्मल लाइब्रेरी की तरह ही है, लेकिन जैसे हम अलग अलग लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, IOStream, स्ट्रिंग, वेक्टर्स, जो भी हम यूज करते हैं वो इंक्लूड करते हैं, उनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि उन सबको इंक्लूड कर देता है. तो हमको बार बार अलग अलग नहीं लिखना पड़ता, सब कुछ एक लाइन से ही सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. और ये यूजिंग नेमस्पेस std तो स्टैंडर्ड है, और इट मीन ये भी है. तो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं. तो वेरिएबल्स जो है हमारे वो ये हैं. तो टी है वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस स्टोर करेगा, जो कैप है वो नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स स्टोर करेगा, और जो स्मॉल है वो नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स स्टोर करेगा, और हमारी स्ट्रिंग एस में स्टोर होगी. और यहाँ पे हमने इंट लिया है क्योंकि टेस्ट केसेस लेस देन 100 है, जो कि इंट में फिट हो जाते हैं, इसलिए लॉन्ग की जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट लाइन में हमने टी को जो है वो इनपुट लिया है. तो हमने ये लूप बनाया है
वाइल लूप है। तो इसमें जो कंडीशन में हम लिखा है टी माइनस माइनस, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो टी माइनस माइनस लिखा है, तो टी माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि पहले जो टी की वैल्यू है वो यूज होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू 1 से रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू यूज वाइल की कंडीशन में हो रही है, मतलब कि जब भी टी की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और नंबर होगी वो ट्रू कंसिडर करी जाएगी, और जब 0 होगी तो फॉल्स कंसिडर करी जाएगी। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 100, तो इनिशियली जो फर्स्ट लूप रन होगा तो टी की वैल्यू 100 यूज होगी, और उसके बाद उसकी वैल्यू 19, वैल्यू 1 से रिड्यूस हो जाएगी और 99 हो जाएगी। जो 100 यूज होगी तो 100 जीरो नहीं है, इसलिए उसको ट्रू कंसिडर करेंगे और लूप रन होगा। तो फर्स्ट लूप में जब रन होगा तो टी की वैल्यू 100 थी, और उसके बाद टी की वैल्यू 1 से रिड्यूस हो गई तो 99 हो गई। तो सेकंड लूप में जो वैल्यू यूज होगी वो होगी 99, थर्ड लूप में 98 होगी, और इस तरह से कम होती जाएगी। जब 100th लूप रन होगा तो उसमें टी की वैल्यू 1 होगी। तो जब 100 लूप रन होगा तो उसमें टी की वैल्यू जब 1 होगी तो वो भी ट्रू कंसिडर करी जाएगी, और 100 टाइम लूप रन होगा, और जब लूप रन हो जाएगा उसके बाद जो टी की वैल्यू है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि अब टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब 101 टाइम ये लूप रन करने की कोशिश करेगा तो जो वाइल के अंदर कंडीशन है वो टी 0 हो जाएगा। तो जब टी 0 हो जाएगा तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वैसे हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं टेस्ट केसेस के लिए कि फॉर आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन टी आई प्लस प्लस, वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इससे शॉर्टकट है, इससे भी जो लूप है वो टी बार रन होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टाइम लूप हमारा रन होगा। तो अब इस लूप के अंदर हम सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनपुट लेंगे। तो हमने स्ट्रिंग इनपुट ले ली है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग में इटरेट करेंगे और हर लेटर के लिए चेक करेंगे वो कैपिटल है या स्मॉल है। तो हम स्ट्रिंग में इटरेट कैसे करेंगे, हमने सी में एक स्पेशल मेथड होता है, ये है, ये फॉर लूप होता है कि इसमें हम एक पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं कैर स्पेस आई, फिर यहाँ पर ये जो कोलन एस है इसका मतलब क्या होता है, जो एस है ये स्ट्रिंग है, और ये आई जो है ये टेम्परेरी वेरिएबल है, इसका टाइप है कैर। तो ये क्या करता है कि जो हर इटरेशन में आई की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग का एक लेटर होती है, और ये ऑर्डर में करता है, मतलब कि जो फर्स्ट इटरेशन होगा उसमें जो आई की वैल्यू होगी वो एस का फर्स्ट लेटर होगी, और सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू एस का सेकंड लेटर होगी। ऐसे ith इटरेशन में जो एस का ith लेटर है वो आई में स्टोर हो जाता है, इससे हम बहुत इजीली स्ट्रिंग में इटरेट कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे जो हमारे जो लेटर है स्ट्रिंग का वो कैपिटल है या स्मॉल। तो जो कैर टाइप वेरिएबल होता है उसमें जो कैरेक्टर है उसकी आस्की वैल्यू स्टोर होती है। जो आस्की वैल्यू होती है वो हम देखेंगे यहाँ पर, जो कैपिटल लेटर्स हैं उनकी आस्की वैल्यू जो है वो 65 से लेकर के 90 तक स्टोर होती है, जो कैपिटल लेटर्स है, और जो स्मॉल लेटर्स है वो 97 से लेकर के 121 तक स्टोर होते हैं। तो जो कैपिटल लेटर है वो 90 से जो 65 से 90 के बीच में होते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स है वो 97 से 122 के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि जो हमारा लेटर है स्ट्रिंग का वो अगर z से लेस है, यानी कि जो आस्की टेबल में है वो अगर हमारा 90 से लेस है तो वो कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि जो लेटर्स है वो जो कैपिटल लेटर्स है वो शायद 90 से लेस होंगे या इक्वल होंगे, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो 97 से 122 तक होंगे। अगर जो हमारा लेटर है उसकी आस्की वैल्यू 90 से लेस देन इक्वल टू है तो वो जो हमारा लेटर है वो कैपिटल होगा। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि वो जो लेटर है स्ट्रिंग का वो कैपिटल है। और अब तो हम अगर वो लेटर कैपिटल है तो हम उसकी वैल्यू +1 कर देंगे, और इसके बाद हम चाहें तो हर बार स्मॉल की वैल्यू भी +1 कर सकते हैं अगर वो कैपिटल नहीं है, यहाँ पर एस लिख करके, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं जो हमारा स्मॉल लेटर नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स है वो जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है माइनस नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इन द स्ट्रिंग हो, ये भी हम कर सकते हैं। इससे जो स्मॉल लेटर्स होगा वो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इन स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अब अगर नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स से ज़्यादा है तो अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है उसको हम पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए जो सी में मेथड होता है ये होता है, फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, जो स्ट्रिंग होती है उसका नाम लिखते हैं और s.begin s.end s.begin एंड टू अपर ये हम लिखते हैं। ये अगर आपको नहीं पता तो ये डायरेक्ट गूगल सर्च करता है तो तुरंत मिल जाता है ये मेथड। ये फंक्शन है, ये C++ में डायरेक्ट कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को यूज होता है। और अब हम चेक करेंगे अगर नंबर ऑफ
यानी ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स से ज़्यादा नहीं है, यानी कि स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स या तो बराबर है या स्मॉल लेटर्स ज़्यादा है, तो हम पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके लिए ये मेथड होता है। और फाइनली हम स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम हमारे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो जो हमारे कोड में हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग में एक बार इटरेट किया है और हर एलिमेंट चेक किया है वो कैपिटल है या स्मॉल है। तो यानी कि हर एलिमेंट हमने एक बार चेक किया है। तो अगर स्ट्रिंग में n एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट हमने एक बार चेक किया है, इसलिए जो हमारी कोड कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O of n होगी। सो दिस वॉज द सोल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।